नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। पूरे देश के साथ साथ आज सिलीगुड़ी में भी मनाया जा रहा है माउंट एवरेस्ट दिवस। देश के उन हिस्सों के साथ ही आज सिलीगुड़ी में विभिन्न संस्थाओं की ओर से 67वीं माउंट एवरेस्ट दिवस सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मनाया गया। विभिन्न संस्थाओं की ओर से सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी प्राधिकरण और गैर सरकारी संस्थाओं नैप के संयुक्त तत्वाधान में माउंट एवरेस्ट दिवस दार्जिलिंग मोड़ स्थित तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति के सामने मनाया गया। यहाँ पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए तेंजिंग नोर्गे की प्रतिमा पर माल्यादान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। मंत्री गौतम देव ने कहा कि तेंजिंग नोर्गे एक महान व्यक्ति थे और उनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में भी इन महान शख्स को याद करना बेहद जरूरी है, इसलिए सामाजिक दूरी का पूरा पालन करते हुए आज माउंट एवरेस्ट दिवस का पालन किया गया। आपको बता दें कि 1953 के दिन सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की याद में हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। পালন করা হয় তেনজিং নোরগের স্মরণে। এটা আমাদের দেশের একটা খুব গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এক্সপিডিশনের ক্ষেত্রে এভারেস্ট প্রথম জয় করা হয়েছিল এবং তাতে তেনজিং নোরগে শেরপার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আর পর্বত আরোহণের ইতিহাসে। আজকে সেই দিন, কিন্তু করোনার আবহে এবং যেভাবে করোনা বাড়ছে তাতে সবাইকেই সচেতনতার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হবে। এখানে ন্যাপ এটা অর্গানাইজ করেছে এজেডিএর সহায়তায়। খুবই অনাড়ম্বরভাবে আজকে এই এভারেস্ট ডে পালিত হচ্ছে। আমরা এসছি সবাই এবং আজকে এই উপলক্ষে ন্যাপ তাদের কার্যালয়ে আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পেরও আয়োজন করেছে। সেটা 11টা সাড়ে 11টার সময় শুরু হবে। আজকের এই দিনে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই তেনজিং নোরগের প্রতি এবং এই পর্বত আরোহণে এক্সপিডিশনে সারা বিশ্বের এবং আমাদের দেশের এবং বাংলার অনেক পর্বতারোহী সন্ধ্যাগাইন থেকে শুরু করে যাদের মৃত্যু হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক, তাদেরও স্মৃতির প্রতি আজকের এই দিনে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। এই 67তম বর্ষে আমরা এখানে এবছর একদম অনাড়ম্বরভাবে প্রত্যেক বছর এই দিনটাকে পালিত হয় অ্যাজ এ এভারেস্ট ডে। আমরা এখানে অন্যান্যবার বড় করে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সাথে যৌথভাবে এটা করা হয়। এখানে বড় প্যান্ডেল হয়, বিশিষ্ট মানুষজন, বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রেমী অ্যাডভেঞ্চার লাভাররা উপস্থিত হয়। শেরপা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন তারা এখানে কালচারাল প্রোগ্রাম করেন। এগুলো সমস্তই এবার বন্ধ করা হয়েছে এই যে কোভিড-19 যে প্যান্ডেমিক, সেই কথা মনে রেখে এবার শুধুমাত্র সমস্ত কিছু নিয়ম কানুন মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে এবারে শুধুমাত্র আমাদের তেনজিং নোরগে শেরপা আমাদের জেলার মানুষ শুধু নয়, আমাদের জাতীয় হিরো, তাকে সম্মান জানাতে আমরা সমস্ত নর্মস মেনে শুধুমাত্র এখানে ফুল খাদা দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যাতে এই দিনটাকে আমরা উদযাপন করতে পারি। যে মরণোত্তর ভারতরত্ন আমাদের তেনজিং নোরগে শেরপাকে দেয়া হোক। তিনি সারা বিশ্বের একজন মানুষ, যার কথা সারা পৃথিবীর মানুষ যতদিন পৃথিবী থাকবে মনে রাখবে। তো আমাদের জেলার মানুষ হিসেবে, আমাদের দেশের মানুষ হিসেবে যে মরণোত্তর ভারতরত্ন তাকে দেয়া হয় দীর্ঘদিনের দাবি। এবছরও এটা আমরা বহাল রাখছি, যাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হোক, কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এটা ওনাকে অবিলম্বে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদান করে। उत्तर दिनाजपुर बनता जा रहा है कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट। 24 नए मामले सामने। उत्तर दिनाजपुर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। उत्तर दिनाजपुर मालदा के बाद उत्तर बंगाल का दूसरा ऐसा जिला बन गया है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। संक्रमित मरीजों की संख्या 141 हो गई है। जिले में गुरुवार को 31 नए मामले सामने आए थे और अब शुक्रवार को फिर से 24 नए मामले सामने आने के बाद उत्तर दिनाजपुर में कुल मरीजों की संख्या 141 पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि काफी समय तक उत्तर दिनाजपुर ग्रीन जोन इलाके में था, लेकिन जब से प्रवासी श्रमिकों का आना शुरू हुआ है तब से यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या
काफी बढ़ गई है। संक्रमित रोगियों में भी प्रवासी श्रमिक और उनसे संपर्क में आने वाले लोग ही शामिल है। इस संबंध में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्रनाथ प्रधान ने बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों के बढ़ने से वे काफी चिंतित हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोग काफी तेजी से ठीक हो रहे हैं। अभी तक 23 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए काफी अच्छी तरीके से व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और काफी बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 344 नए मामले सामने, मौतों का आंकड़ा 200 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार में जबरदस्त उछाल आया है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस के 344 नए मामले रिपोर्ट किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसी के साथ राज्य में कुल कोरोना वायरस के केस की संख्या बढ़कर 4536 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौतें भी हुई है। इन्हें लेकर अब तक 223 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2573 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में यहां जानकारी दी गई। अच्छी खबर यह है कि एक दिन में 90 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1668 हो गई है। जहां एक और राज्य में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं कोविड अस्पतालों में 82% बेड्स खाली बताए जा रहे हैं। केंद्र ने टिड्डियों को लेकर 16 राज्यों को जारी की चेतावनी। टिड्डियों से मुकाबले के लिए नए उपकरण खरीद रहा है भारत। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की फसलों को तबाह कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार मरुस्थलीय टिड्डियों का झुंड इस साल देश की कृषि के लिए एक गंभीर खतरा है। यहाँ पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वनस्पति और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इसके लिए केंद्र ने 16 राज्यों को चेतावनी जारी की है। खाद्य और कृषि संगठन की मरुस्थलीय टिड्डियों को लेकर जारी सूचना सेवा बुलेटिन के अनुसार टिड्डियों एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर का भोजन चट कर सकती है। सरकार ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 11 नए निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े को तैयार किया है और इनसे निपटने के लिए नए उपकरणों को आयात कर रही है। उत्तर प्रदेश से इस्लामपुर लौटे छात्र, कुछ प्रवासी श्रमिक भी घर लौटे। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे 40 विद्यार्थी व कुछ प्रवासी श्रमिक शुक्रवार को इस्लामपुर के अलुयाबाड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरे। ये सभी विद्यार्थी उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के रहने वाले हैं। वहीं कूच बिहार के कुछ प्रवासी श्रमिक भी आज वहां पहुंचे। इस्लामपुर नगर पालिका के मुख्य प्रशासक कन्हैयालाल अग्रवाल की पहल पर बाहर से आए सभी विद्यार्थियों व श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग व मेडिकल टेस्ट कराया गया। इसके बाद कूच बिहार के श्रमिकों को असम जाने वाली ट्रेन में बैठाया गया। विद्यार्थियों को बस में बैठाकर उन्हें अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। इस्लामपुर नगर पालिका के प्रशासक कन्हैयालाल अग्रवाल ने बताया कि दूसरे राज्य से आने वाले विद्यार्थियों और श्रमिकों को आज मेडिकल टेस्ट किया गया। उन्होंने कहा, इन लोगों में कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण नहीं पाया गया है। सभी को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर असम जाने वाली ट्रेन से कूच बिहार जा रहे एक छात्र मोहम्मद शरीफ ने कहा कि वे पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे राज्य गए थे। उन्होंने बताया कि सरकारी मदद से वे वापस लौट रहे हैं। साथ ही उन्होंने ग्वालपोखर के विधायक व श्रम मंत्री गुलाम रब्बानी से अपेक्षित मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सभी छात्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन के कारण वे लोग वहीं फंस गए थे। দুটো ট্রেন আসলো। প্রথম ট্রেনটা ছিল 6130, সাথে 7-8 জন নেমেছিলেন, তারা সবই কুচবিহারগামী। আর একটা ট্রেনটা যে আসলো 4586, এটাতে 35-40 জন আছেন, এরা গল্পপুরে। তো আমরা যেহেতু এই ট্রেনটা আসাম বাউন্ড ট্রেন আছে, এই জন্য 6130-তে যারা যারা কুচবিহারের দিকে নেমেছিলেন তাদেরকে আসাম বাউন্ড ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এখানে যারা গোয়ালপুকুরে যারা এখানে নেমেছেন তাদেরকে আমরা এখানে আরটিও সবাই আছেন, পুলিশ আছেন, মেডিকেল স্টাফ আছেন, সবাই আছেন। আমরা এখানে এদেরকে একটা বাসে তুলে দেব। বাসে তুলে দিলে বিপরীত থেকে এরা সব নিজের নিজের ডেস্টিনেশন পয়েন্টে চলে যাবে। এদেরকে কি হোম কোয়ারেন্টাইন করা হলো? এখন সব হোম কোয়ারেন্টাইন আছে। সিমটমেটিকটা সিমটমগুলো দেখে নিয়েছে, কারো সিমটম নেই, এসিমটমেটিক আছে সবাই, এই জন্য সবাইকে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হবে। কতজন আসবে তাহলে? এখানে 35 জন এখন আসবে গল্পপুরের, যারা উত্তর এখন আসলো। আগেরগুলো যারা আসছিল 7-8 জন হয়তো কুচবিহারের ছিল, ওদেরকে তো আমরা আসাম মাউন্টেনে উঠিয়ে দিয়েছি। এখন যারা গল্পপুরের আছে তাদেরকে আমরা ওদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দেবো বাসে দিয়ে। মানে আর কোনো ট্রেন ঢোকার কথা আছে আজকে আর নেই, এখন পর্যন্ত ওরকম খবর নেই। मदरसे की तरफ से इंतज़ाम था, बाकी और वहाँ के जो जिम्मेदारान थे, विधायक हो, सांसद हो और हुकूमत का जो अमला है, उन लोगों की तरफ से इंतज़ाम था मदरसे के ऊपर जाने। सब ठीक ठाक होगा। रही बात हमारे MLA साहब है रब्बानी,
उनकी तरफ से हमें मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि बार बार फ़ोन करके कहा गया और लोग परेशान थे। जहाँ भी मजदूर, जहाँ भी लोग फंसे हुए थे, किसी की तरफ से हर ने गुहार लगाई, हर ने आवाज़ उठाई कि हम तक कोई मदद मिलनी चाहिए हमारी, जैसे और सांसद और एमएलए का कहना था। लेकिन हमारे एमएलए साहब रब्बा ने कुछ नहीं किया। इस पर लोगों की मायूसी छाई और लोग इससे शिकवा और गिला कर रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में, हमारे यहाँ के सभी जानते हैं कि मजदूर लोग अक्सर जगहों में हैं, लेकिन सबका यही शिकवा है कि यहाँ के हमारे एमएलए साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। नहीं। कोरोना वायरस से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत। संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 1.65 लाख के पार। लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1.65 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 7,466 नए मामले सामने आए हैं और 175 लोगों की मौतें हुई है। देश में कोरोना वायरस के 79,987 एक्टिव केसेस है। अब तक 71,105 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,706 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाए। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया खुफिया जानकारी के आधार पर बृहस्पतिवार रात रायगंज के कुलिक पक्ष निवासी संलग्न सियालमनी फॉरेस्ट इलाके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के नाम बापा सरकार, अजय मंडल एवं विक्रम साव है। बापा सरकार रायगंज के पश्चिम वीरनगर, अजय मंडल रायगंज के रविंद्रपल्ली व विक्रम साव रायगंज के नेताजी सुभाष कॉलोनी का रहने वाला है। तस्करों के पास से 40 ग्राम ब्राउन शुगर, मादक पदार्थ मापने के यंत्र, एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन एवं मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस पाए गए कोरोना संक्रमित। पश्चिम बंगाल में एक मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति राज्य मंत्रिमंडल में इस तरह का यहां पहला मामला है। सरकार में महत्वपूर्ण पद पर मौजूद एक सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि राज्य अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें घर में ही पृथकवास में रहने की सलाह दी गई है। मंत्री के आवास पर एक घरेलू सहायक के इस बीमारी से संक्रमित पाए जाने के बाद बोस और उनके परिवार के सदस्यों के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सरकार ने देश में लॉकडाउन 5.0 की तैयारी शुरू कर दी। हॉटस्पॉट में पड़ेगी सख्ती, मिल सकती है ये छूटें। रविवार को लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगरायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और SP को शामिल कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि लॉकडाउन 5 के दौरान मुख्य जोर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट पर होगा और देश के बाकी हिस्सों में पहले से अधिक छूटें दी जा सकती है। कोरोना के मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 70% से अधिक मामले 13 शहरों तक सीमित है। यह शहर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चिकलपट्टू और तिरुवल्लुर है। जाहिर है कि इन शहरों में यदि कोरोना के मामले का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इसको देश के बाकी हिस्से में फैलने से रोका जा सकता है।
लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से जानी उनकी राय। देश में जारी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं, इस बारे में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों से राय लेनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके उनकी राय जाननी चाहिए है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस बातचीत में गृह मंत्री शाह ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्रियों के विचारों से अवगत हुए। यही नहीं, बातचीत के दौरान शाह ने मुख्यमंत्रियों से उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य 1 जून से खोलना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक लॉकडाउन के हर चरण के आखिरी दिनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानते थे, लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जिम्मेदारी संभाली है। मालूम हो कि पीएम मोदी जब मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे होते तो केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद रहते थे। मुख्यमंत्रियों ने इस बातचीत में शाह से क्या विचार साझा किया, इस बारे में तो फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के 5वें चरण को भी लागू कराने का सुझाव दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा, चीन को लेकर मोदी का मूड है खराब। दावे पर भारत ने कहा कि दोनों में 2 महीने से इस मुद्दे पर नहीं हुई है कोई बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भारत ने गलत बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने बात की। ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी से बातचीत के दौरान भारत और चीन के बीच बड़े टकराव को लेकर वहां अच्छे मूड में नहीं है। एएनआई के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल ही में कोई संपर्क नहीं हुआ है। उनके बीच अंतिम बातचीत 4 अप्रैल 2020 को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के विषय पर हुई थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम सीधे तौर पर स्थापित तंत्र और कूटनीतिक संपर्कों के माध्यम से चीन के संपर्क में है। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 3,62,010 लोगों की हो चुकी है मौतें। 59.04 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित। रूस में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने। दुनिया में अब तक 62,04,658 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। मौतों का आंकड़ा 3,62,010 हो गया है। वहीं 25,79,629 लोग कोरोना वायरस की जंग जीत चुके हैं। रूस में पिछले 24 घंटे में 8,371 नए मामले सामने आए। महामारी को देखते हुए रूस ने ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समूह और एशियाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट स्थगित कर दी है। ये दोनों समिट इस साल रूस की अध्यक्षता में होने वाली थी। महामारी की स्थिति को देखते हुए एसीयू और ब्रिक्स समिट की अगली तारीख सदस्य देशों को बताई जाएगी। रूस में अब तक कुल 3,79,051 मामले सामने आ चुके हैं। 4,142 लोगों की मौतें हो चुकी है और 1,50,993 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।